بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے۔ کشتواڑ کے سرتھل گاؤں میں مویشیوں کے مرنے پر لوگوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ محکمہ اینیمل ہسبنڈری کشتواڑ کے آفیسر نے نیوز 18 کو فون پر بتایا کہ کسی بیماری کی وجہ سے مویشیوں کی موت نہیں ہو رہی ہے، بلکہ ایک قسم کے گھاس کھانے سے ان کی موت ہو رہی ہے۔ انہوں نے ایک ٹیم کو متعلقہ علاقے کو روانہ کیا۔ JKPCC کے نائب صدر غلام سروری نے کہا کہ جن کے مویشی مرے ہیں انہیں معاوضہ دیا جائے۔ چیف اینیمل ہسبنڈری کشتواڑ سے بات کی کہ ایک ٹیم بھیجی جائے تاکہ ان کو دوائی علاج میں معالجہ کیا جائے، جس سے وہ غریب لوگ جو ہیں اتنے بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ میری یہی التجا ہے کہ یہ اتنا بڑا نقصان جو لوگوں کو ایس ٹی پاپولیشن کا، کسانوں کا، زمینداروں کا ہو رہا ہے مال مویشی کا، اس کے لیے دوائی فری اور ایک ٹیم فوری طور پہ بھیج دی جائے۔ ڈسٹرکٹ جیل کٹھوا میں سزا کاٹ رہے قیدیوں نے دھوم دھام سے جیل میں ہی ہولی کا تہوار منایا۔ پروگرام میں موجود جیل سپرنٹینڈنٹ رجنی سہگل نے قیدیوں کے ساتھ گلال لگا کر خوشیاں بانٹی۔ انہوں نے بتایا کہ جشن منانے کے لیے تمام مناسب انتظامات کیے گئے تاکہ قیدیوں کو کسی طرح کی کوئی کمی محسوس نہ ہو۔ جیل سپرنٹینڈنٹ نے امید ظاہر کی کہ جب یہ لوگ سزا کاٹ کر جائیں تو ان کی زندگی بھی خوشیوں سے بھر جائے۔ کھیلنے کے لیے ہولی آئے ہیں، رونے دھونے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ بات ہی جوڑی لگے ہے نا، چنگی۔ یہ رنگوں کا تہوار ہے، خوشی کا تہوار ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے یہ دیواریں ہم سب کے لیے بہت چھوٹی ہو گئی۔ ہم سب اس رنگ میں رنگے جس رنگ میں پوری دنیا باہر رنگی ہوئی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ فیسٹیولز، یہ نیشنل فیسٹیولز، ریجنل فیسٹیولز ہمیشہ چلتے رہیں گے۔ یہ بھی ہماری اور آپ کی طرح انسان ہیں جنہوں نے واپس آپ کے بیچ میں آنا ہے، تو ان کا سواگت کیجئے، ان کو ایکسیپٹنس دیجئے۔ جو ان کے لوگ باہر رہ گئے ہیں تو ان کے وکٹمز ہیں یا ان کی فیملیز ہیں، تو ان کی کیئر کیجئے، ان کو پروٹیکٹ کیجئے، ان کو پیار دیجئے۔ ان کے لیے بھی اپنے دلوں میں پیار اور جذبہ ہمیشہ قائم رکھیں۔ جب بھی یہ آئے کھلی باہوں سے ان کا سواگت کیجیے۔ ہولی بہت اچھی منائی ہے، ہمارے میم جو ہیں SP صاحب جو ہیں بہت اچھا ہمارا سہجوگ کرتے ہیں۔ کوئی بھی اگر تیار یہاں پہ کچھ بھی ہوتا ہے بڑے اچھے طریقے سے مناتے ہیں، اور آج ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کہ ہم نے ہولی منائی ہے۔ پونچھ میں سکھ طبقے نے ایک نگر کیرتن نکالا۔ ضلع گردوارہ پربندھک کمیٹی کی طرف سے ہولا محلہ کے سلسلے میں یہ جلوس نکالا گیا۔ ہندو اور مسلمان بھی اس پروگرام میں شریک ہوئے۔ ضلع اور پولیس انتظامیہ کے افسران اس میں شریک رہے۔ یہ نگر کیرتن پونچھ کے مختلف بازاروں اور محلوں سے ہو کر گزرا ہے۔ نہانگ سنگھوں کے جتھے نے اس دوران تلوار بازی کے کرتب دکھائے۔ ایک ہی دن میں ہولی، ہولا اور یہ شب کا جو تہوار آیا، تو جہاں ہندو کمیونٹی نے ہولی منائی، سکھ کمیونٹی آج ہولا منا رہی ہے، اور مسلم کمیونٹی نے رات کو شب منایا۔ تو یہ بڑی سبھاگی کوانسیڈنس کی کہہ لیجیے، سبھاگی کی بات ہے کہ سبھی کا جو ہے اتنے آلموسٹ ایک ہی دن جو ہے یہ تینوں تہوار آ گئے۔ تو ہمیں خوشی ہے، سبھی کو بدھائیاں ہیں بڑے اچھے طریقے سے۔ جہاں کرگل میں جشن شب برات اور ولادت باسعادت حضرت امام مہدی بڑے جوش و عقیدت کے ساتھ منایا گیا۔ کرگل اور لداخ کے شیعہ آبادی والے تمام علاقوں میں شب برات کی رسم انجام دی گئی۔ کرگل کی جامع مسجد، خمینی ٹاور، مدرسہ اسنا عشری اور امام باڑوں کو سجایا گیا تھا۔ نماز، درود و اذکار اور نعت اور قصیدے میں رات بھر گزاری گئی۔ لوگوں نے اپنے مرحومین کے لیے دعائے خیر کی اور قبروں پر چراغاں کیا۔ مدرسہ اسنا عشریہ کرگل میں سینکڑوں لوگوں کے لیے تبرکات کی نشاندہی کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ عراق سے لائے گئے 3 علم کی زیارت کرنے کے لیے ہزاروں لوگ جمع تھے۔ ولادت باسعادت حضرت امام مہدی کی پرمسرت مناسبت سے انجمن جمعیت علماء اسنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام جشن میلاد منعقد کیا گیا۔ احاطہ حوزہ علمیہ اسنا عشریہ میں منعقدہ پروگرام میں ہزاروں کی تعداد میں آئے عقیدت مند شریک ہوئے۔ مقررین نے فلسفہ ظہور امام زمان پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے مومنین پر زور دیا کہ وہ
ताजील ज़ुहूर के लिए हमेशा दुआएं करते रहें। कई क़सीदा ख़्वानों ने इमाम ज़माना की निशान में शानदार खराज पेश किया। फिशरीज डिपार्टमेंट में काम कर रहे आरजी मुलाजमीन ने फिशरीज ऑफिस कुपवाड़ा के सामने मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। इन वर्करों ने अपने जायज़ मुतालबात को मान लेने की इंतज़ामिया से गुजारिश की है। एहतजाजी मुलाजमीन इल्ज़ाम आयद कर रहे थे कि महकमा उनको काम के एवज़ मुनासिब मुशाहरे फराहम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से वो फाक़ा कशी पर मजबूर हो चुके हैं। शब बारात है और हम कैसे शब बारात मनाएंगे? हमारे लिए कौन सा खुशी का दिन है? ये कौन सी खुशी की रात है जब हमारे बच्चे जो हैं वो भूख से तड़प रहे हैं, उनके पास खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, हम उनको क्या देंगे? आप देखिए हमारे साथ जाती नहीं है, साल में एक दफा जो है आज वेजेस रिलीज हो रहे हैं और बदकिस्मती की बात है कि आज भी हमें इग्नोर किया जा रहा है, आज भी हमें वेजेस नहीं दिए जा रहे हैं। जो 2010 वाले हैं उनका जो है उनकी फाइलें जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं और उनके लिए जो हमें वेजेस वागुजार की गई है। और दूसरा जो ये 2010 से लेकर 15 तक जो है इनकी फाइलें जो है वो अंडर प्रोसेस है। अंडर प्रोसेस होने के बाद इंशाल्लाह इनके बारे में भी कोई डिसीजन लिया जाएगा। महकमे तालीम में दर्जे चहारुम की आसामियों पर बरसरकार मुलाजमीन ने हुकूमत से मांग की है कि वो उनकी DPCs पर नजरसानी करे। अपनी मांगों को दोहराते हुए अनंतनाग में इन क्लास 4th मुलाजमीन ने कहा कि अरसे दराज से उनकी फाइलें मुतल्लिका दफातर में धूल चाट रही हैं। मुलाजमीन ने इस बारे में मुनासिब इक़दामात का LG इंतजामिया और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन से मुतालबा किया है। उसको जल्द अज जल्द कंडक्ट किया जाए ताकि 16 साल इंतज़ार करे बैठे ये जो एम्प्लॉइज़ हैं इनको इंसाफ मिले। मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन यूनुस साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि 2013 से लेकर अभी तक DPC कंडक्ट नहीं हुई हैं, तो हम इस वक्त आपको बाखबर करना चाहते हैं कि अगर जल्द अज जल्द कोई फैसला लिया गया तो ठीक है, वरना ये एम्प्लॉइज़ फिर सड़कों पे आएंगे। हुकूमत ने बिजली निज़ाम को दुरुस्त करने और दूर दराज इलाकों में नए रिसीविंग स्टेशन कायम करने के काम शुरू किए हैं, लेकिन कुछ जगहों पर तामीराती काम सुस्त रफ्तारी से जारी है। तारतपुरा, रामहाल, कुपवाड़ा में कई साल पहले ये तामीराती काम शुरू तो किया गया, लेकिन नामालूम वजूहात की बिना पर काम बंद पड़ा हुआ है। इस रिसीविंग स्टेशन पर मटीरियल जंग आलूदा हो रहा है। चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट मेंटेनेंस ने न्यूज़ 18 उर्दू को फोन पर बताया कि 3 से 4 महीने के अंदर प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा। हमारी उनसे गुजारिश है कि वो मेहरबानी करके जितना जल्द हो सके उतना जल्द इस रिसीविंग स्टेशन को चालू करें, इसको कंप्लीट करें। तार ही जल जाते हैं, इतना लोड है। अगर ये जल्दी ये मुकम्मल होगा तो तारतपुरा ब्लॉक और बलगाम ब्लॉक दोनों ब्लॉक अच्छी तरह से पावर देख सकते हैं हम। कल जो कोविड की वजह से काम मैक्सिमम रुक गए थे जी, तो इस साल हम पूरी फुल प्रोग्रेस से काम करेंगे और कोशिश यही करेंगे सारे स्टेशन इसी साल कंप्लीट हो जाए। लोग जो है वो वहाँ पर कह रहे हैं कि जो तारतपुरा रामहाल का रिसीविंग स्टेशन है उसमें तमाम तामीराती काम मुकम्मल हुआ, बेसिकली कोविड की वजह से फैक्ट्रियां बंद थी, अब पावर ट्रांसफार्मर बनने शुरू हो गए जी। और जो रास्ते का इशू था, ये पावर ट्रांसफार्मर बड़े होते हैं, 40 टन के होते हैं जी, 30 टन के होते हैं, उनको ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज होते हैं ट्रॉलरों के जी। तो जो अब ट्रांसफार्मर आएगा, कुछ ट्रांसफार्मर आए भी है पिछले 8 हफ्ते में, वो बारिश की वजह से रास्ते में रुके हैं, तो अब वो आएंगे तो हम इनको ये इशू कर देंगे। और आपको लग रहा है कि 1-2 महीने के अंदर अंदर इनका ये रिसीविंग स्टेशन जो है वो चालू हो जाएंगे? जी, कम से कम 3 महीने। भाई लोगों ने कहा था कि हम ऑलरेडी चीफ साहब से मिले भी थे, तो चीफ साहब ने एश्योर किया था कि 1-2-3 महीने के अंदर ये हो जाएगा। दैट्स व्हाई वो मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं, मेरे से कोई नहीं मिला तारतपुरा का। जी जी, फिलहाल हम ये कहेंगे कि 1-2-3 महीने के अंदर ये आवाम के नाम विदिन 4 मंथ कर दीजिए आप। पिंगलिशराल में लोगों ने बुनियादी सहूलियात को लेकर इंतजामिया के खिलाफ एक खामोश एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि ये इलाका कस्बे से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन इलाके को तमाम महकमों ने नजरअंदाज कर दिया है। लोगों को तरह तरह की मुश्किलात है। लोगों ने बताया कि इलाके में सबसे बड़ा मसला पीने के पानी का है। लोगों ने अपील की कि इलाके की जानिब तवज्जो मरकूज की जाए। नंबर 2 दितो RNBS से दरखास्त बनिम रोड हस्पताल त्राल टू पिंगलिश
तो तिमो वो दोपक यह क्या रोड यह क्या खाप पट हू ये तो अकन कर ब्लॉक वाले तंग तिम तुम कहीं आब यवन आरपा लाम पे कम कैसा अस नश वातान अत वर्क तो तम सत पिंगलिश गाम सह पिंगलिश गाम नासन बगैर तम बगैर त्रो ये ट्यूबवेल खन खतर आज 5-6 वरी ब्रो मशीन तो तथ कुन ना खुनक ना कोर सह मशीनरी तो पे बस कड़खा क्या कोरखा। जिला कुलगाम के एक वफद ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और रुकन पार्लिमान हसनैन मसूदी से मुलाकात की। श्रीनगर में एनसी हेडक्वार्टर्स पर यह मीटिंग हुई। तर्जुमान इमरान नबी डार की क़यादत में यह वफद यहां पहुंचा था। लोगों ने अपने अपने इलाकों के मसाइल से हसनैन मसूदी को वाकिफ कराया। वफद ने एनसी लीडर को बताया कि जिला कुलगाम बहीबाग के जेके बैंक ब्रांच बिना किसी वजह के शिफ्ट कर दी गई। बांडीपुरा में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मेंबरशिप मुहिम शुरू की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मोहम्मद अकबर लोन ने जिला सदर बांडीपुरा मीर गुलाम रसूल नाज की मौजूदगी में मुहिम को शुरू किया गया। गुरेज के साबिक रुकन असम्बली नज़ीर गुरेजी और डीडीसी चेयरमैन अब्दुल गनी भट्ट के अलावा पार्टी के दीगर लीडरान भी मौजूद थे। लोन का कहना था कि मेंबरशिप की यह मुहिम जम्मू कश्मीर में जोरों शोर से जारी है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी सुरेंद्र सिंह चुन्नी ने त्राल की गुजर बस्ती कारमूला और बसमनी का दौरा करके कई अवामी वफूद और पार्टी वर्करों के साथ मुलाकात की। उन्होंने कहा कि कारमूला गुजर बस्ती इलाके को कई साल पहले ट्राइबल मॉडल विलेज का दर्जा दे दिया गया था, ताहम अभी इस इलाके में जमीनी सतह पर कोई भी तरक्याती काम नजर नहीं आ रहा। उन्होंने पीडीपी पर निशाना साधते हुए कहा कि त्राल में 12 साल पीडीपी का एमएलए रहने के बावजूद भी गुजर बस्तियां नजरअंदाज रहीं। मुझे लग रहा है कि अभी बिल्कुल टोटली ये पंचायत और डीडीसीज भी जहाँ जहाँ मैं घूमा ये फेल हो चुके हैं, क्योंकि ना इनकी यहाँ पे ग्राम सभा होती है, ना ये लोगों को बुलाते हैं कि हमारे यहाँ पे मसले क्या हैं। अपने अपने घरों के जो मसले मसाइल हैं उनकी साम लेते हैं, न कि वो लोगों के बीच में जाके लोगों के मसलों को हल करने। मखामा मागाम में 10 बरस पहले एक अस्पताल तामीर किया गया था, लेकिन उसे मरीजों के लिए आज तक चालू नहीं किया गया। मखामा के लोगों का कहना है कि अस्पताल का तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है, ताहम इसे लोगों के लिए वक्फ नहीं किया गया। इस मामले में ताखीर से मकामी लोगों ने हेल्थ डिपार्टमेंट पर बरहमी का इजहार किया। लोगों ने बताया कि यहाँ एक एम्बुलेंस भी फराहम की गई थी, लेकिन उसको भी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। मरीज मागाम या श्रीनगर के अस्पतालों को मुंतकिल होने पर मजबूर होते हैं। लोगों ने इस अस्पताल को फौरी चालू करने और यहाँ अमले को तैनात करने का मुतालबा किया है। ये बिल्डिंग आपके पतिम 8-10 वरी बनवित शानदार बिल्डिंग वनकस तैयार, मगर हैंड ओवर छुन करान कहीं तम ती डॉक्टर साहबान चाहे 10-15 तकरीबन 20 डॉक्टर्स और, मगर ये मज ड्यूटी कहीं तम मागम ना तम बडगाम एम्बुलेंस ये सह तुन तूर ये पत अंद पुत बोड़ इलाक 10-15 गांव कम अज कम, मगर मामूली पेशेंट अगर योर ये पे सह रेफर कर श्रीनगर पे कर नत मागम। यहाँ ना स्टाफ है ना कुछ भी नहीं है। यहाँ तो प्रॉब्लम है। एक तो हैंड ओवर टेक ओवर की प्रॉब्लम है, दूसरी यहाँ पर फेंसिंग भी नहीं लगी हुई है। हम मुतबाना गुजारिश करते हैं मीडिया के थ्रू से कि प्लीज़ मेहरबानी करके हमारा ये जो माइनर इश्यूज़ हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, कहाँ हमारी बिल्डिंग तैयार है, हम उसको टेक अप करने की एज अर्ली एज पॉसिबल। शोपियां के जिस्मानी तौर पर नाखेज शिराज अहमद ने श्रीनगर के एक अस्पताल में जेर इलाज मरीज का सेहत कार्ड बनाने के लिए 70 किलोमीटर का सफर तय किया। रजिस्ट्रेशन के 2 घंटों बाद ही मरीज को सेहत कार्ड जारी कर दिया गया। शिराज अहमद का कहना है कि मुस्तहिकीन की मदद करके उन्हें खुशी होती है। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद ने भी अपने एक ट्वीट में शिराज अहमद के इस इक़दाम का तज़किरा किया। मैं हैंडीकेप्ड हूँ, मेरे दाएं हाथ में प्रॉब्लम है। ये समझ कर के अपना दुख याद आकर उसका भी दुख क्या याद आया कि मैंने सोचा जैसे मुझे तकलीफ है उसको भी ऐसा तकलीफ है, इसीलिए मैं वहां जल्दी निकला अपने सेंटर से और गया उधर, तो उसको रजिस्टर किया है। एटलीस्ट ये 70 से 75 किलोमीटर आती है। उसे 2 ही घंटे के बाद ही उसको सिल्वर कार्ड मिला है, लेकिन 4-5 घंटे के बाद ही उसको फिर गोल्डन कार्ड मिला है। तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।